Hello students, good morning. Today is Monday and today's date 12 July 2021 and today we will start a new part or a new chapter, that is chapter number 3, and the name of that chapter, I Wonder. So the third chapter name is I Wonder. Actually this is a poem, and whatever page you can see in this poem, that is in your textbook, the front page of your textbook. You can see there was a girl. On first day we were discussing about that girl's how it means many questions in her mind and she is thinking something different. And same poem, it means that poem is in number 3 and the poem name is I Wonder. हमारी poem का, हमारी कविता का नाम क्या है? I Wonder. First of all, do you know students what is the meaning of wonder? Can you tell me? Did you hear this word anywhere? आपने कभी ये word सुना है? Wonder. Many times your mother says to you, don't wander here and there. Why do you wonder? है ना? बोला होगा आपके मम्मी ने आपको कि तुम इधर उधर क्यों भटकते हो? इधर उधर, it means wonder means क्या? भटकना. जब हम बेमतलब या किसी भी मतलब के सिवाय कहाँ पे घूमते हैं, विदा मतलब टाइम वेस्ट करते हुए घूमते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? वंडर, भटकना, है ना? भटकना क्या है? वंडर का मतलब है भटकना, भटकते जाना, भटकते रहना मीन्स वंडर. So first two lines are, listen carefully as your teacher reads out the poem and to you imagine this beautiful poem as it is being read to you. So जब हमें ये पोएम सीखनी है, जब इस पोएम के बारे में सुनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए कि उस पोएम में इमेजिनेशन करना चाहिए कि मैं भी एक हिस्सा हूँ, मैं भी एक पार्ट हूँ. लाइक दैट गर्ल, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट पोएम, दैट इंसिडेंट्स which are we going to watch in this poem. So first of all, I will read this whole poem, so only you have to hear. Then in second step, I will read 2 lines and I will that those lines in English and in Hindi. Okay, so let us start. I wonder why the grass is so green, and why the wind is never seen. Who taught the bird to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lighting flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? And who, here is the name of that by Jenny Kirby. By Jenny Kirby had written this beautiful poem for you. Actually, we read this poem. Now we will read 2 lines. You can see, students, at the end of these lines,
The ending words are same. Their pronunciation is same. Green, seen, nest, rest, round, found. Like these words are in this stanza. So they are called rhyming words. यमक शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, गो, सो, बैट, कैट, है ना, आउट, शाउट. जब हम ये दोनों वर्ड्स बोलते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर द लाइन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. क्या है? क्वेश्चन मार्क. जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं. ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, और हम बहुत बार ये क्वेश्चन हमारे पेरेंट्स से या टीचर से पूछते हैं. और फिर उनसे हमें क्या होता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर, हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है. बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उनके पास भी उनके जवाब नहीं होते हैं. सो हियर इज ऑल्सो इन दिस पोएम द गर्ल, यू कैन सी हर फेस, सो यू कैन सी हर आईज. हियर you can see the picture of moon. Here is a bird in the nest. You can see here is a bird, tree is there, flower is there, rainbow is there, clouds is there, and about these all things the girl is thinking. It means why, what is the reason why they are like this, and like this she is thinking, and maybe she will ask her daddy, and what is the answer her daddy will tell her, we don't know. So let us see two lines. So first two lines, I wonder why the grass is so green and why the wind is never seen. ये लड़की बोलती है कि जब मैं भटक रही थी, मैं जब तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये जो ग्रास होती है, you know grass, 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 everywhere now is rainy season, you can see the grass has very it means dark green color, है ना. कैसा कलर होता है पेड़ों का, पौधों का और ग्रास का भी, तो ग्रीन कलर होता है. तो वो लड़की बोलती है कि बाबा इस ग्रास का कलर इतना ग्रीन क्यों है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन. हवा है ना, हवा हमें कभी दिखती है क्या? हमें महसूस होती है जब हवा आती है, हवा का झोंका आता है, हमारे बाल उड़ते हैं, कपड़े उड़ जाते हैं, हमें ये महसूस होता है. बट कैन वी सी टू विंड? कभी हमने हवा को देखा है आंखों से? नो. So the girl is thinking, I wonder why the grass is so green and why the wind is never seen. Interested है कि हमने तो कभी हवा को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे महसूस करते हैं. और पूरी तरफ जो ग्रास फैली हुई है, जो पेड़ पौधे फैले हुए हैं, तो उनका कलर इतना ग्रीन क्यों है, इतना हरा क्यों है ना. Who taught the bird to build a nest? ये जो पक्षी होते हैं, पता है वो जो नेस्ट में रहते हैं, उनका जो घोंसला होता है वो खुद बनाते हैं, कोई उनको बनाकर नहीं देता है. जैसे हमारा घर हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बनवा कर देते, हम खुद नहीं बनाते. बट बर्ड्स का ऐसा नहीं होता. तो ये गर्ल सोच रही है कि पता नहीं ये जो बर्ड है इनको किसने सिखाया नेस्ट बनाना, घोंसला बनाना. किससे सीखे होंगे ये सभी बर्ड्स कि हाउ टू मेक द नेस्ट, है ना. एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट. अभी आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं वो एक ही जगह पे खड़े होते हैं, है ना. फिर उनको किसने बताया होगा कि एक जगह खड़े होकर ही रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए. तो ऐसे अजीब अजीब ख्याल, अजीब अजीब सवाल उसके मन में आ रहे थे. Oh, when the moon is not quite round, वो बोलती है जब वो चंदा मामा होता है जो रात में आता है, तो कभी कभी वो हाफ ही दिखता है, पूरा नहीं दिखता. Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Bit means a very small part.
है ना, very small part, and here is the meaning about that full moon is not there, and so other part of it is missing as it cannot be seen, so that is a bit, है ना। कि कभी कभी हमें चंदा मामा जो होता है, जो रात में आप देखते हो, तो कभी वो फूल दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी उससे भी थोड़ा सा छोटा सा दिखता है। तो ये लड़की सोच रही है कि बाबा कभी कभी तो ये चंदा पूरा गोल भी दिखता है, और कभी कभी पता नहीं उसका थोड़ा सा पार्ट कहाँ पे मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। सो ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। और छोटे से हिस्से को जो मिसिंग है, अभी उनको पता नहीं हम कहाँ ढूंढे, है ना। उसे लगता है कि चंदा का जो मून का जो मिसिंग पार्ट है वो पता नहीं कहाँ पे खो गया है, और उसे कहाँ पे ढूंढना चाहिए। Who lights the stars when they blow out? आपको पता है जब आकाश में आप रात में तारे देखते हैं जो टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, है ना, तारे चमकते हैं, तो उनको ये लाइट कौन देता होगा? स्टार्स को। क्योंकि हमारे घर में जो लाइट आते हैं, जब हम बटन दबाते हैं तो लाइट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमारे घर में लाइट आते हैं। बट पता नहीं ये जो स्टार्स हैं उनको लाइट कौन देता है, प्रकाश कौन देते हैं, ये हमें पता नहीं है। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। फिर उसका जो प्रकाश हम पे गिरता है या धरती पे गिरता है वो भी पता नहीं, कि उसके बारे में भी पता नहीं कि वो कैसा वो प्रकाश होता है और कैसे वो हम तक पहुंचता भी है। Who lights the stars when they blow out and make the lighting flash about? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उस गर्ल के मन के अंदर आ रहे हैं। So last two stanzas are there. Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Do you know, students, here is a rainbow. You can see here are the clouds. They are very fluffy. It means, do you know the fluffy ice cream? बहुत ही ऐसी मतलब बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होती है, बहुत ही फ्लफी आइसक्रीम। दैट इज उली हम बोल सकते हैं, या तो फिर फरी भी बोलते हैं ना। दैट इज फरी और उली इज मीनिंग ऑफ फ्लफी। फ्लफी आइसक्रीम, फ्लफी जैसे वो क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स देखे हैं ना आपने? बारिश आने के बाद जब आप आकाश में देखते हो तो कभी कभी आपको क्या नजर आता है? रेनबो नजर आता है। रेनबो हैज डिफरेंट कलर्स and the many clouds are there, but they are very high. So the girl is thinking, who paints the color in the rainbow? ये जो रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं ना, you know the rainbow's color, that is yellow, green, blue, and that is light blue also, orange also. So here who fills the color in rainbow? कौन भरता होगा जो रेनबो हमें आकाश में दिखता है, क्लाउड्स में दिखता है, तो उसमें कलर कौन भरता होगा इतने सुंदर सुंदर? और पता नहीं वो जो फ्लफी क्लाउड्स होते हैं वो हमसे इतने दूर क्यों होते हैं, है ना। हमें भी लगता है बाबा who is the creator of that rainbow and clouds and how they are far from us, है ना। Sometimes we also think after the rainy season, in rainy season we see the beautiful rainbow and the clouds in the sky. Why is it now, do you suppose? ये सब कुछ क्यों है? Why is it now? Do you suppose? क्या आपको भी लगता है, आपको भी समझता है कि ये सब जो है मतलब ग्रास ग्रीन क्यों है? विंड को हमने कभी नहीं देखा है, क्लाउड्स को नहीं देखा है, इसका रेनबो में कलर कौन भरता है? और डू यू नो व्हाई बर्ड्स अपना घर कैसे बनाते हैं? किसने उनको सिखाया होगा? जो पेड़ एक जगह पे रुके वो कितने सालों से एक जगह पे रेस्ट कर रहे होंगे? जो चंदा मामा है वो राउंड क्यों नहीं? तो ये सभी क्वेश्चंस, व्हाई इज इट नाउ, ये सब कुछ क्या है, क्यों है? एंड दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज। पता नहीं मेरे डैड और फादर मुझे बताते नहीं हैं, और उनको वो भी मुझे क्यों नहीं बताते हैं? शायद उनको भी पता है कि नहीं है। If he knows, question is there. No मतलब पता होना, है ना। ये सभी जो क्वेश्चंस वो लड़की के भी माइंड में आए हैं। जब उसने डैडी से पूछा, उसके फादर से पूछा, तो वो सोचती है कि पता नहीं डैडी भी इसके आंसर्स दे पाएंगे या नहीं, या उनको भी पता है या नहीं, है ना। सो हाउ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ आई वंडर।
and the many questions in this story the little girl is asking, and really very amazing questions she asked. Why grass is so green? Why wind is never seen? Why trees are taking rest on one place? And who taught to the birds how to make the nest? Why the moon is not round? Where is the missing of its beat part? And why lights the stars? So these are all the questions. Who fills the color in rainbow, and why the clouds are so far from us? Why they are very fluffy? And who will tell the answer of these all questions? Maybe daddy won't tell. Yeah, he will be tell, but if he knows the answer of this question. सो ऐसे भटकते भटकते हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सो मोस्टली हमें पता है कि बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना. बट इट इज वेरी गुड थिंग आस्किंग द क्वेश्चन टू पेरेंट्स, टू टीचर्स, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इफ वी आस्क द क्वेश्चन वी गेट नॉलेज, है ना. हम उसके बारे में ज्ञान मिलता है, और हमारा नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है. और रियली on the earth you can see there are amazing things are there, that is, it means that force us to think about that. बहुत हमारे मन में ख्याल आते हैं, ये जो ब्यूटीफुल बर्ड्स है उनकी आवाज है. एंड रियली गॉड इज वेरी गुड क्रिएटर ऑफ दिस गॉड नेचर. भगवान ने ये दुनिया इतनी सुंदर बनाई है कि जब हम अलग अलग चीजें देखते हैं, नदियां देखते हैं, तो हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उस गर्ल के जैसे. ओके, नाउ यू हैव टू रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन. आई विल सेंड इट्स PDF फॉर ओनली रीडिंग. ओके, बाय एंड टेक केयर. Students, I had given writing work of that previous 2 topics. I hope you have completed, because on Monday collect your notebook for checking. I will check your English literature book notebook. So I tell the timing, and collect your notebook for checking. Bye. Take care. Watch this video carefully. Good day. Bye.